Okay, welcome all of you. Very good evening. Praise the Lord. Jai Masiki. Uh, I'm so excited to see you all. I always say ये क्लास एक व्यक्ति के लिए शुरू किया था मतलब प्लान किया था but at least more than uh, one or two, it's already 12 people today, 10, 11 people. Praise So the Lord, let's start. Jaya. Praise the Lord, Praise the everyone. Lord. Praise the Lord. I was telling about you. We started this class for one person, but we have like 10, 12 people today. Praise God. And people are being blessed. And we are also recording this. So later you can go back and watch, and others can watch, those who did not have the opportunity now. So let's start with the prayer. जो last week हमने किया था. Uh, okay. Even though your videos are off, but kindly pray this prayer from your heart before we start. आइए हम प्रार्थना करेंगे. Lord, I believe that the Holy Bible is the inspired word of God, and I invite the Holy Spirit to be my teacher today. Amen. Amen. Uh, so last week हम judgment के बारे में बात किया था. We talked about judgment. Why is it good to be judged by God daily? इसके बारे में बात किया था. एंड आई होप यू हैव बीन प्रेइंग. मैं विश्वास करता हूँ आप प्रार्थना प्रभु से बोल रहे होंगे, प्रभु मुझे हर दिन आप सर्च करें, जज करें, मेरा न्याय करें, ताकि मैं उस फाइनल जो ग्रेट जजमेंट डे के दिन मैं कमजोर न पाऊं या मैं अधूरा ना रहूं. सो आई होप यू हैव प्रेड. So next is Jabam Bible. We are still in the book of Genesis. When we see moving on, of course, Noah ke flood to aa gaya, uh, but the major thing that happened after the flood was the Tower of Babel. बाबुल का एक बड़ा टावर या एक इमारत लोग मिलकर बनाने लगे. लगभग ऐसा कहते हैं कि there were about 70 families during that time, because flood के बाद सब लोग खत्म हो गए थे. There were only about 8 people left. वहां से फिर से शुरू हुआ. Then there were about 70 families at this time, probably, and they came together, 70 families or 70 household clans, and they came together and started building Tower of Babel. Okay. ये उत्पत्ति की किताब 11 अध्याय में, Genesis chapter 11, we read about it. I just want to highlight some of the things. First verse कहते हैं कि the whole earth spoke one language and used the same words. Okay, and as people journeyed eastward, they found a plain in the land of Shinar, जो कि later the city of Babylon, or it's called the place of Babylon, and they settled there. They said to one another, वो आपस में ये कहा, come, let us make bricks and fire them thoroughly. So they used bricks for stone as building material, and they used tar. Then verse 4 कहते हैं, वो क्या कहा? Come, let us build a city for ourselves, and a tower whose top will reach into the heavens. And let us make a famous name for ourselves, so that we will not be scattered
into separate groups and be dispersed over the surface of the entire earth. Okay, so ये उनका सोच था, उनका कहना था, क्योंकि वे लोग मिलकर एक टावर को, सिटी को बनाने के लिए कोशिश किया. Why I am telling this? Because आपको मालूम होगा, you might know that God came down and saw that that was not right what they were doing, and उनको confuse किया है. God confused their language, and then they could not continue building, and they scattered. I have a lot of things to share today. Probably I'll share the in parts. Like मैं आज जितना मैंने तैयार किया है वो पूरा हो सके तो कंप्लीट नहीं करूं, क्योंकि इट्स लिटिल बिट, थोड़ा सा आगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो मुश्किल होगा आपको समझने के लिए. बट आई वांट टू गो स्लो. मैं धीरे जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत बहुत जरूरी है. नो, वन लैंग्वेज. उस समय लोग एक भाषा बोल रहे थे, एंड they were united and they were trying to build a tower that will reach into heavens. उनके लिए, इसका मतलब परमेश्वर के अलावा वो अपने आप से अपने लिए एक सिटी बनाने लगी, एक टावर को बनाने लगी. So now let's see, what was this tower known for? Why? परमेश्वर, why would have they made that tower? क्यों वो बनाना शुरू किया होगा? Number one probable reason could be क्योंकि वो इतना बड़ा टावर बनाना चाहा कि वो स्वर्ग तक पहुंचे. हमें पता है कि नोह की फ्लड के समय पर संसार के सारे जो पहाड़ों के ऊपर से, संसार या उस एरिया में, कुछ लोग कहते हैं कि उस एदन की जो रीजन है, प्लेन्स है, उस एरिया के जो सबसे बड़े पहाड़ के ऊपर 15 फुट तक पानी आए थे. सो प्रोबेबली दे वांटेड टू बिल्ड अ टावर बिकॉज दे वांटेड टू एस्केप अनदर फ्लड. फ्लड किसको दर्शाता है? जजमेंट. नाउ अगेन अंडरस्टैंड, देखो मनुष्य का हृदय कितना बुरा है, मतलब बुरा इन द सेंस कितना विकड है, सेल्फिश है, और अनबिलीफ भरा हुआ, मतलब अविश्वास से भरा हुआ. क्योंकि परमेश्वर ने नूह के साथ ये वाचा बांधा, कहा कि थ्रू ए रेनबो मेड ए कवेनेंट दैट आई विल नॉट डिस्ट्रॉय ह्यूमन बीइंग्स अगेन विथ वाटर. मैं आगे से फ्लड को भेजकर पृथ्वी को नाश नहीं करेंगे करके परमेश्वर उस फ्लड के बाद नूह के साथ वाचा बांधा था थ्रू अ रेनबो. बट पीपल वे आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड. उसका कहने का मतलब जो फ्लैश, जो सेल्फ उनके अंदर ऑलरेडी उनके शरीर में जो काम कर रहा है, जो राज कर रहा है, that flesh was not allowing them to believe in God. A tower to escape another flood, a tower to reach God. False religion, a tower of unbelief, unable to believe God's covenantal promises. मैं उस टावर के बारे में बताना चाहूँ. वो that is just a representation. वो टावर या सिटी जो वे लोग बना रहे थे, वो केवल पत्थरों से, ईंट से या मोटार से बनाने वाला एक केवल इमारत के बारे में नहीं बात कर रहा. They were trying to build something against God. वो परमेश्वर के खिलाफ
परमेश्वर से अलग होकर अपने लिए अपने आप को ऊंचा करने के लिए कुछ बना रहे थे। क्योंकि जैसे हम पहले क्लासेस में देखें, द सेल्फ, द फ्लैश जो पाप के कारण मनुष्य के अंदर आ गया, दैट सेल्फ was not letting them to move forward with God. परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने के लिए उनका शरीर में जो स्वयं जो है, जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, जो पाप है, वो उनको अनुमति नहीं दे रहे थे। So they came together. They were united. They were trying to reach God, probably. False religion. ये सबका शुरुआत है उत्पत्ति में। आप थोड़ा ध्यान से सुने, जजमेंट से वो एस्केप करना चाह रहे थे, परमेश्वर से वो बचना चाह रहे। आज भी दुनिया ऐसा कोशिश करती है ना, परमेश्वर से अलग होकर सब कुछ करना चाहते हैं। जिसलिए मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, आई टोल्ड यू, इवन मी until maybe 3, 4, 5 years, I was also not very much impressed with the word judgment. Judgment जो शब्द से इतना impress नहीं था, इतना attraction नहीं था। But जब मुझे पता चला कि when God judges us, जब परमेश्वर हमारा न्याय करते हैं अभी इस दुनिया में, वो हमारे फायदा के लिए है, वो हमें सेव करने के लिए, हमें बचाने के लिए, ताकि हम संसार के साथ मिलकर आखिरी में नाश ना हो, संसार या शैतान और जो भी उनका जुन है। सो जजमेंट से बचाने का कोशिश मनुष्य का शुरू से रहा। देन परमेश्वर के पास जाने का रास्ता ढूंढने का कोशिश पहले से रहा, एंड दैट लेड टू फॉल्स रिलीजियंस। धर्म, झूठे धर्मों को स्थापना किया मनुष्य ने, ताकि वो खुद ढूंढते हुए चला गया परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, जबकि परमेश्वर ने खुद उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में बोला कि नहीं, मनुष्य का संतान के द्वारा ही, जो स्त्री के अंदर से उत्पन्न होने वाला जो सीड है, उसके द्वारा ही संसार का उद्धार होगा। शाम से जब परमेश्वर ने बात किया, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, बट उसके अलावा भी मनुष्य तब से ढूंढने लगा। दे स्टार्टेड फाइंडिंग वेज टू रीच गॉड, दैट लेड टू फॉल्स रिलीजन। और वो फॉल्स रिलीजन बाद में जाके हिंड्रेंस बन गया। ये जो टावर है बाबुल का, वो तो परमेश्वर ने तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे मनों में इन द सेंस मनुष्य के मनों में कई टावर्स हैं, कई स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, कई गढ़ हैं, कई ऐसे दीवारें हैं जो परमेश्वर के पास पहुंचने से हमें रोकता है। फॉल्स रिलीजन का दीवार है, प्राइड, सेल्फ का दीवार है, फ्लैश का दीवार है, अनबिलीफ का दीवार है। परमेश्वर ने साफ साफ बताया कि एक्चुअली परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि वो पूरे संसार को नाश किया पानी से। सो he made a covenant, एक वाचा बांधा मनुष्य के साथ, नहीं, मैं तुम्हें नाश नहीं करूंगा। But man was not able to believe God's promise, and that is another struggle आज भी हमारे साथ होते। परमेश्वर का वचन हमसे लगातार बात करते हैं, हमें इतने सारी बातें बताते हैं, पर हम उन सबको एक what you call we look at those word of God with doubts. हम शंका के साथ, संकोच के साथ उन वचनों को देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता, इसलिए जो प्रेयर हम करते हैं, यू हैव टू स्ट्रांगली बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड, द बाइबल जो आपके हाथ में है। आई बिलीव इट्स ट्रू बाइबल, होली बाइबल। उससे आप प्यार करें, मतलब उस किताब से प्यार करने की बात नहीं है, इस वचन से आपके प्यार
होना चाहिए. You have to have a deep love, deep hunger, interest towards the word of God. Tower of pride, कि परमेश्वर के ऊपर वो भरोसा करना नहीं चाह रहा था, बल्कि वो इसलिए वो अपने आप अपने ऊपर भरोसा किया. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रगल बिटवीन फ्लैश एंड गॉड इन ए बिगम. एक एक व्यक्ति के अंदर ये स्ट्रगल है. स्ट्रगल इज देयर इन यू, इन मी, इन द वर्ल्डली पीपल. हर एक के अंदर है. लेकिन अब ये जो इंसिडेंट है, बिल्डिंग द टावर ऑफ बाबिल, बाबुल का जो टावर बनाने में, दैट इज अ कलेक्टिव एफर्ट. उसके पीछे कौन सी आत्मा कार्य किया है? आप सोच सकते हैं कौन सी आत्मा कार्य किया? इट इज अ स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट. मसीह विरोधी की आत्मा बाबिल टावर बनाने में उसके पीछे कार्य किया है. मे बी यू आर हियरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. ये आप पहली बार सुन रहे होंगे. अरे ये तो मसीह विरोधी तो बाद में आने वाला है, अंत में आने वाला है. वो तो है, वो एक व्यक्ति जो है वो बाद में आने वाला है, अंत में आने वाला है. बट द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट इज एट वर्क फ्रॉम द बिगिनिंग. शुरुआत से, इवन फ्रॉम द गार्डन ऑफ एडन, ये स्पिरिट काम कर रहा. बट वो तो पहले बाहर से काम कर रहा था एडन में, उनको गिराने तक. लेकिन जब वो गिरा दिया, अब वो अंदर से भी काम कर रहा. एंटी क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट को अपोज करने वाला, यीशु मसीह को अपोज करने वाला, मसीहा को अपोज करने वाला, परमेश्वर को अपोज करने वाला. दैट इज इट, एंटी क्राइस्ट. उसको आप डोंट बी कंफ्यूज्ड और डोंट फील लाइक ओ तो दैट वो तो भारी शब्द है. ऐसा नहीं, भारी शब्द नहीं है. इट्स अ स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट दैट यूनाइटेड पीपल. इसलिए आई वांट टू से men came together with unity. वहां पर लिखा है नो, वो एकता के साथ आया. किसके लिए? परमेश्वर के खिलाफ. और वो यूनिटी किसने? इसलिए मैंने बोला 70 से अधिक जो परिवारों के मुखिया थे, मतलब कुल के लोग थे, और भी उनके परिवार, सब मिलकर ये काम किया हो. लेकिन इन सबको यूनाइट करने वाली कौन सी आत्मा थी? इट वॉज अ स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट, बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट गॉड. इसलिए हमें सावधान रहना है कि हम कौन सी पक्ष में है. न कई बार हम यूनिटी संसार में भी देखते हैं, यूनिटी टू डू समथिंग, संसार में भी देखते हैं. लेकिन उसके पीछे काम करने वाला सामर्थ आत्मा कौन सी है, हमें हमें जांचना है. You need to really check what is the spirit that is working behind uniting people. वो उसका मोटिव से पता चलता है. what is the motive? उन लोगों का मोटिव क्या था? उनका मोटिव क्या था? हम जब पढ़ा, they wanted to build a city for themselves, सेल्फ को प्रमोट करने के लिए. उनका मकसद या उनका लक्ष्य क्या था? अपने लिए, और स्वर्ग पहुंचने के लिए, और फेमस होने के लिए. इट वाज देयर मोटिव. उससे पता चलता है कि नो, इट वाज अ स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट. I'm going to introduce and say more about Antichrist or the kingdom of Babylon and the kingdom of God. इसीलिए परमेश्वर उतर आया और देखा कि ये लोग तो बिल्कुल यूनाइटेड हैं. अगर आप इसी प्रकार ये लोग ये बनाने लगे तो उनसे कोई काम असंभव नहीं होगा. Nothing will be impossible for them. So what did God did? He came down and उनको मारा नहीं, उनके बीच में कुछ महामारी तो नहीं भेजा, उनके लैंग्वेज को कंफ्यूज किया. He confused their language. इसलिए
वो टावर ऑफ बाबेल कहते हैं। बाबेल का मतलब है कि कंफ्यूजन, द टावर ऑफ बाबेल, बिकॉज गॉड कंफ्यूज देयर लैंग्वेज, और इस कारण वो स्कैटर होगी, वो अलग हो गया, तितर बितर होगी, वो एक साथ नहीं रह पाए, वो उस काम को पूरा नहीं कर पाए। दे वर नॉट एबल टू कंप्लीट दैट टावर, and they were not able, because they were not able to understand, they were not able to communicate with each other, so they left, uh, uh, they began to scatter away. अब यहां पर आपको समझना है एक बात वेरी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताना चाहता हूं। he used tongues to scatter them. tongues मतलब भाषाओं को दिया, अलग अलग लोगों को अलग अलग भाषा देगा, उनके भाषा को चेंज करके परमेश्वर ने उनको स्कैटर किया, बिकॉज परमेश्वर की इच्छा था कि वो पूरे पृथ्वी में भर जाए, फैल जाए। परमेश्वर 2 बार ये जो क्या बोलते हैं कि कमांडमेंट मनुष्य को दे रहा है, तुम जाओ, फलो फूलो और पूरे पृथ्वी में भर जाओ। बट मनुष्य एक रहना चाहे। क्यों एक रहना चाहे? बिकॉज इफ इट इज वन, द कंट्रोल विल बी इन वन पर्सन। एक व्यक्ति के अधीन में वो रहेंगे जो परमेश्वर के खिलाफ उनको मोटिवेट करते रहेंगे, उनको क्या बोलते हैं कि उनको इंस्पायर करते रहेंगे। जैसे पवित्र आत्मा आपको और मुझे प्रेरणा देते हैं, शैतान की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट, उसी प्रकार परमेश्वर के खिलाफ लोगों को प्रेरणा दे सकता है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हम सोच रहे हैं कि सिर्फ पवित्र आत्मा ही लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। यस, पवित्र आत्मा अच्छे कामों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, उनके मकसद को पूरा करने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं, हमें नियंत्रण करते हैं। लेकिन आप देखो आज संसार में एक बहुत बड़ा युद्ध परमेश्वर के खिलाफ क्यों है? उनके पीछे कौन सी शक्ति है? कौन सा व्यक्ति है? कोई भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनके पीछे भी जो काम करने वाला एक आत्मा है, दैट इज द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट और स्पिरिट ऑफ सैटन, अब कह सकते हो। बट इस अपोजिंग कंटिन्यूअसली क्या करते हैं कि वो मसीह का विरोध करते हैं, मसीह को इनकार करने के लिए लोगों को प्रेरणा देता है। बाबिल इस लेटर वो बैबिलोन बन जाते हैं, एंड बैबिलोन थ्रू आउट द बाइबल आप देख सकते हैं, इट इज अ ग्रेट सिटी ऑफ इविल, एक अधर्म का शहर, महाशहर कहलाने वाला है बैबिलोन। सो कैसे एक छोटा शुरुआत बाद में जाके एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कि एक शक्ति या एक बहुत बड़ा शहर, महाशगर, सारे पाप को उत्पन्न करने वाला एक शहर बन जाते हैं, बाइबल में हम देख सकते हैं। नाउ आई वांट टू रीड सम ऑफ द वर्सेस फ्रॉम रेवलेशंस। प्रकाशित वाक्य से कुछ आयतों को आपको दिखाना चाहता हूं, बिकॉज वहां पर बैबिलोन का एक फुल पिक्चर दिखाते हैं और उसके नाश के बारे में भी बताते हैं। बैबिलोन को परमेश्वर किस प्रकार नाश करेगा उसके बारे में भी बताया, लेकिन उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने वर्ड्स इधर स्लाइड में डाला है। सो वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, यू कैन look into it and read it. प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में, chapter 17. Now you have to pay very close attention because ये थोड़ा सा माइंड आपको इसमें पूरा लगाना पड़ेगा। बैबिलोन के बारे में
17 का 5 कहते हैं, इट्स टॉकिंग अबाउट अ वुमन, इट्स अ पिक्चराइजेशन, बिकॉज यूहन्ना एक दर्शन देख रहा है आने वाले समय में या अंतिम दिनों में होने वाले संभव, उसके बारे में परमेश्वर उनको दिखा रहा है. सो ही इज सीइंग एन व्हाट यू कॉल विजन, वो दर्शन देख रहा है, उसमें कई चीजें पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करता है. सो एक प्रोस्टिट्यूट बैठा है एक बीस्ट के ऊपर, और उनके माथे पर ये लिखा है बैबिलोन द ग्रेट, एक भेद लिखा है, Babylon the Great, the mother of prostitutes. False prostitutes means here it not only means what you call physical prostitution के बारे में, उससे बढ़कर वो कहना चाहता है कि spiritual prostitution. What is spiritual prostitution? Spiritual prostitution is nothing but moving away from God. परमेश्वर के साथ जो आपका प्रेम है, आपका भक्ति है, आपका जो लगाव है, उससे जब मनुष्य अलग हो जाते हैं, उसको स्पिरिचुअल प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं. कैसे? फॉल्स रिलीजन के द्वारा, हेरेसीज के द्वारा. हेरेसीज, व्हाट आर हेरेसीज? बाइबल के शिक्षाओं को मरोड़ के सिखाना, वो हेरेसीज कहते हैं. गलत शिक्षाएं, गलत उपदेश, वो भी बाइबल से. एंड ऑफ द अबॉमिनेशन ऑफ द अर्थ. मैं इसका हिंदी भी आपको दिखाना चाहता हूं ताकि हो सकते आपको और उससे समझ आए. उसका 5 आयत को देखें, प्रकाशित वाक्य 17 का 5. और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता. वेश्याओं मतलब, मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि आत्मिक वेश्यावृत्ति के बारे में बता रहे हैं कि जो लोगों को लगातार परमेश्वर के प्रेम से, भक्ति से, भावना से, उनके लगाव से मोड़ने वाला, उनको अलग करने वाला जो शक्ति है, वो बाबेल की शक्ति है, बाबुल की शक्ति है, बैबिलोन की शक्ति है, या एंटी क्राइस्ट की आत्मा है, जो शुरू से है, उत्पत्ति की किताब में ही शुरू से है, मनुष्य की कहानी की शुरुआत से है. इसलिए मैंने 1-2 हफ्ते पहले आपको बताया, परमेश्वर और उसका विरोधी है शैतान. ये हमेशा कोशिश करता है कि शैतान मनुष्य को परमेश्वर से दूर करे. और उस स्त्री के बारे में लिखा है 6 आयत में, उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाले देखा, और उसे देखकर मैं चौंक हो गया. मतवाली देखा मतलब क्या? उसका सबसे ज्यादा काम, उनको प्रसन्न करने वाला काम है क्या है? कि परमेश्वर के लोगों को नाश करना, उनके लहू, उनके गवाही को खराब करना. ये मसीह विरोधी की आत्मा का कोशिश. माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड. मैं इसका इतना इंपॉर्टेंस के साथ इसलिए क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आप और मैं एक व्यक्ति तो हैं, पर आपको परमेश्वर ने बुलाया, अलग किया है. सो इसलिए शैतान की जो आत्मा है, मसीह विरोधी को आत्मा है, वो हमेशा आपको टारगेट बना के चलता है, ताकि आपको परमेश्वर की उस प्रेम से अलग करे, आपको परमेश्वर की उस भक्ति से अलग करे. किसी भी वस्तु के द्वारा, किस संसार की किसी भी चीज के द्वारा वो कर सकता है. सो वी हैव टू बी केयरफुल. लेकिन बैबिलोन का जो फॉल के बारे में 18 अध्याय, रेवलेशन 18, प्रकाशित वाक्य 18 में आप देख सकते हैं. हम जस्ट
showing it. आप बाद में जाके इसको पढ़ लेना. अभी बेबीलोन के बारे में इस इंट्रोडक्शन मिलने के बाद when you read that you will understand वो क्या करते हैं. इसमें भी दूसरा आयत में आपको हिंदी में दिखाऊंगा. प्रकाशित वाक्य 18 उसके दूसरे आयत, उसमें लिखा है कि उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया बड़ा बाबुल. गिर गया मतलब जो छोटा बाबुल उत्पत्ति में आप देख रहा है, इतने सालों के बाद, इतनी सदियों के बाद, इतने समय के बाद वो बड़ा हो गया, वो बढ़ते जा रहा है, आज भी बढ़ रहा है. बाबुल मतलब शैतान का इन्फ्लुएंस, एंटी क्राइस्ट का इन्फ्लुएंस, एंटी क्राइस्ट का या शैतान का राज्य, वो बढ़ते जा रहा है. क्योंकि परमेश्वर ने उनको अलाउ किया है, उनको एक समय रखा है, जब तक ये समय ना आएगा वो बढ़ते जाएगा, वो अपना काम करते जाएगा. अब समय ये फ्यूचर में होने वाली बात है. यूहन्ना बोल रहा है वो बड़ा बाबुल गिर गया. वो क्या था उसके बारे में अगला पद बता रहा है कि दुष्ट आत्माओं का निवास था, हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया. I hope no, you will understand. You at least you will get a general picture. ये जो बाबिल टावर परमेश्वर ने क्यों नाश कर दिया, बिकॉज वहां से वो उसके पीछे काम करने वाला जो सामर्थ्य है मनुष्य को अपनी आत्माओं की, वो दुष्ट आत्माओं के इन्फ्लुएंस में लेना चाह रहा था. बट गॉड सेंट हिज स्पिरिट एंड स्कैटर्ड द टंग्स. मतलब इट शोज द स्पिरिट. नो, बाबिल के जो काम को कैसे परमेश्वर ने रोका, उनकी भाषा को अलग कर दिया. टंग्स, ही एक्ट्स चैप्टर 2 में जो टंग्स मनुष्य को दिया है, तो इट इज टॉकिंग अबाउट द स्पिरिट. यहाँ पर दुष्ट आत्मा काबू करने के लिए, कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन परमेश्वर उतर आकर उसकी आत्मा के द्वारा इनको अलग कर दिया. बिकॉज गॉड वांटेड टू फुलफिल हिज प्लान. लेकिन फिर भी बाद में ये आत्मा, दुष्ट आत्मा, मसीह विरोधी की आत्मा लगातार काम करते गया, आज भी काम कर रहा है. वो दुष्ट आत्माओं का निवास है, वो अशुद्ध आत्माओं का अड्डा है. इसमें कौन कौन शामिल है इसके साथ, तीसरा आयत में देखिए, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण. अगेन व्यभिचार का मतलब, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट फिजिकल इमोरलिटी, तो है ही, वो तो अलग बात है, पर यहाँ पर बेसिकली इट्स टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल प्रोस्टिट्यूशन. सब जाति गिर गई, एवरीबडी वाज इन्फ्लुएंस्ड, और पृथ्वी के राजा लोग उनके साथ व्यभिचार किया है. और पृथ्वी के व्यापारी लोग, द रिच, द किंग्स, द रूलर्स, एवरी ट्राइब, हर एक कुल, हर एक जाति, जो बड़े बड़े लोग, राजा, अमीर लोग, ये क्या किया, इसके मदिरा पिया. मतलब इसके जो इन्फ्लुएंस में, उसके जो प्रभाव के अधीन में आ गया. मैं इसीलिए ये सब बोल रहा हूं. आई एम नॉट trying to teach about future eschatology, revelation. वो तो है, थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में आइडिया मिलेगा, बट अब इसका प्रेजेंट डे एप्लीकेशन क्या है. प्रेजेंट डे एप्लीकेशन इतना ही है, ये सब बोलने का मतलब इतना ही है, हम इस बाबिलोन के इन्फ्लुएंस के अधीन में आने से हमें सावधान रहना है. बिकॉज इट इज एवरीवेयर. जहां आपका घर है, जब आप बाहर निकल कर जाते हैं, यह बाबिलोन का इन्फ्लुएंस हर जगह है. पर घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उसके नियंत्रण में नहीं आना है. यू हैव टू कंटिन्यू टू बी अंडर, बी, इसलिए बोलते हैं कि बी कंटिन्यूअली फिल्ड विद द होली स्पिरिट. क्यों बोल रहा है? नया नियम में पौलुस बता रहे हैं कि बी कंटिन्यूअली फिल्ड
आप पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ। क्यों? क्योंकि नहीं तो क्या होगा, अशुद्ध आत्मा का प्रभाव आपके ऊपर आएंगे। वो हमेशा आपको अपने काबू में लाना चाहते हैं। और आगे जब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में, उसके पाप के बारे में, उनके हर बातों के बारे में उधर लिखा है। आप बाद में पढ़ लेना, आई जस्ट पुट इट हियर। अब उसका जजमेंट के बारे में 18 का 21 में लिखा है, विथ ग्रेट वायलेंस Babylon the city will be brought down, sudden spectacular judgment of God, and will never again be found. परमेश्वर इस बाबिलोन का न्याय करेगा, मतलब उस मसीह विरोधी आत्मा, उस राज्य, उसका न्याय करेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कंटिन्यूअली बी पार्ट ऑफ गॉड्स किंगडम एंड वॉक विद गॉड। कि बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और कभी उसका पता ना मिलेगा। सो दैट इज द एंड। मैं शुरुआत और एंड आपको बता रहा हूं, और उस बीच में हम हैं, उस टाइमलाइन में हम उसके बीच में कहीं हैं। 2021 जनवरी 30 तारीख हम है। तो ये राज्य, ये दोनों राज्य इस संसार के ऊपर है। मनुष्य को अपने अधीनता में रखना चाहते हैं। परमेश्वर का राज्य, शैतान का राज्य, मसीह विरोधी का राज्य। परमेश्वर का राज्य का नाम क्या है? इट्स अ होली सिटी, न्यू जेरूशलेम। 21 प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन 21 उसका सेकेंड वर्स में लिखा है, होली सिटी न्यू जेरूशलेम। वो बाबुल का राज्य या शहर नाश होने के बाद परमेश्वर का राज्य क्या होगा? इस संसार में स्थापित होगा। इट्स लाइक ए ब्राइड अडॉर्न फॉर हर हस्बैंड, एक दुल्हन के समान। पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। अगेन इट्स फिगर ऑफ स्पीच, अलंकारिक भाषा इस्तेमाल किया है, शब्द इस्तेमाल, मतलब कंपेयर कर रहा है एक दुल्हन के समान। दुल्हन नहीं है, दुल्हन के समान, जो सजाए हुए, उसको तैयार किए। कौन तैयार किया? नया यरूशलेम इज नथिंग बट द किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड इज नथिंग बट द पीपल ऑफ गॉड, जहां पर परमेश्वर और अपने लोग, कलीसिया मान लो। इस कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को किसने तैयार किया? किसने सजाया? एक दुल्हन को कौन तैयार करते? इस संसार में अगर एक शादी के लिए दुल्हन, हमें पता है कि कहां जाके तैयार होते, गो टू पार्लर, बट वहां पर एक व्यक्ति उनको तैयार करते। यहां पर कलीसिया को, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के लोगों को तैयार करने के लिए कौन है? इट्स द होली स्पिरिट, बिकॉज इट्स अ होली सिटी। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट को इसलिए आपको और मुझे दिया गया है। When you read in John chapter 16, वहां पर लिखा है, हमेशा आपके साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा को दिया गया। So you should be happy, you should be celebrating, you should be what do you call, आपको खुश होना चाहिए पवित्र आत्मा। कई लोग पवित्र आत्मा से क्या बोलते हैं, दूर हो गए। हो सकता है कि पवित्र आत्मा का इंट्रोडक्शन जो आपके जीवन में हुआ वो गलत हुआ, कोई बात नहीं, उसको भूल जाओ। अब सही समझ ले लो, पवित्र आत्मा के बारे में सही इंट्रोडक्शन ले लो फ्रॉम द बाइबल। द होली स्पिरिट हैज बीन सेंट टू प्रिपेयर यू। आपको और मुझे तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा है। कौन सा? कपड़ा तैयार करने के लिए, बाल तैयार करने के लिए नहीं, हमारे अंदरूनी रूप को तैयार करने के लिए। एक दुल्हन के समान, एक पवित्र शहर के समान, पवित्र जन के समान हमें तैयार करने के लिए।
ओके एंड उसके बाद आप बाद में देख सकते हैं उस शहर के बारे में, वहां पर क्या होगा, परमेश्वर उनके साथ, परमेश्वर का डेरा है और वो अपने मनुष्य उनके आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। ये सब कुछ बाद में पढ़ लें। नो आई वांट टू शो बिफोर वी क्लोज कि Babylon, the great city of evil, और न्यू जेरूशलेम चर्च के साथ है जो मेन कॉन्टेस्ट कंपटीशन। द सिटी ऑफ द ग्रेट किंग, दैट इज न्यू जेरूशलेम। नई यरूशलेम और बाबिलोन के बीच में टकराव है। इसलिए कलीसिया के बारे में जब यीशु मसीह ने कहा, आपको याद होगा यीशु ने क्या कहा, मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। कलीसिया यहाँ पर जो कहते हैं न्यू जेरूशलेम चर्च, इज टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल चर्च, नॉट सीएफसी चर्च और मेथोडिस्ट चर्च। वो सब उस सब संसार में है, लेकिन उसमें जो लोग जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार पाए हैं, वो इस चर्च का मेंबर्स हैं, सदस्य हैं। सो इस बीच में टकराव है, ये दोनों शक्तियों के बीच में लड़ाई है, युद्ध है, एक दूसरा का विरोध करते हैं और एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। सो इट्स अ फाइट अगेंस्ट एंटी क्राइस्ट और द डेविल वर्सेस जीसस क्राइस्ट। आपको याद रखना जरूरी है कि ये मैं ऐसे क्यों पिक्चराइज करके आपको दिखा रहा है कि हर काम जब आप करते हैं, हर सोच जो आपके मन में आते हैं ना, आप इट विल बी इजी फॉर यू, आपको पता होने के लिए ये कौन सा राज्य का सोच है, ये काम कौन सा राज्य के साथ मेल खाते हैं, या इस काम का जो नेचर है, जो स्वभाव है, ये कौन सा राज्य के स्वभाव के साथ मेल खाते हैं, फिट हो जाते हैं। देन इट विल बी इजी। और फाइंड आउट करके क्या करना है, अफसोस करने के लिए नहीं, आपको उसको इनकार करना। अगर आपको पता चला कि बैबिलोन का कोई भी काम आपके अंदर है, द ग्रेट सिटी ऑफ इविल, जो मसीह विरोधी की आत्मा के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, ऐसा उसका कोई भी काम, स्वभाव, गुण अगर आपके अंदर है, उसको इनकार करना है, उसको पुल डाउन करना है। दैट इज, इसलिए मैं ये डिफरेंशिएशन आपको आपके सामने बार बार ला रहा हूं, क्योंकि शैतान कोशिश करेगा ये आपके सामने ना आए। वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, वो उसके कारण नहीं, इसके कारण है, आपको कंफ्यूज करेगा। क्यों मेरे अंदर मैं प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहा, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, पता नहीं क्या है, मैं कंफ्यूज क्यों हूँ, मैं निराश क्यों हूँ, मेरे अंदर जॉय नहीं है, आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, क्यों है? हम सोच रहे, आखिरी में हम सोचेंगे अरे पता नहीं, मेरे कारण हो सकता, मैंने कुछ गलत किया। इट कुड बी एनीथिंग, बट आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूं कि इस स्वभावों को आप पहचाने। कंफ्यूजन है, निराशा है, ऐसे सेल्फ क्या बोलते हैं कि खुद को खोसने वाली जो स्वभाव है, ये सब शैतान हमारे अंदर आते हैं। उसको गिराना है, उसको इनकार करना है, देन यू टेक द होल्ड ऑफ द गुड थिंग्स। मसीह विरोधी के साथ नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ आप अलाइन हो जाए। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज। यहां पर बताते हैं कि ये स्लाइड में आप देखो, द फर्स्ट 7, these are the deadly sins: pride, envy, anger, lust, sloth, greed, gluttony, हंगार और जलन, क्रोध, मोह, लालच, पेटुपन और आलसीपन। ये सब जो पाप के लिस्ट में सबसे महान पाप है, 7 महान पाप। उसके नीचे और भी आप देख सकते हैं, बिटरनेस, हेट्रेड, सेल्फिशनेस, hypocrisy, arrogance, unforgiveness, ungratefulness, deceitfulness, lying। मैं
अब इससे पहले देखा ना, एंटी क्राइस्ट और जीसस क्राइस्ट। तो एंटी क्राइस्ट का राज्य का स्वभाव है ये सब, एक साइड में आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के जो लेफ्ट साइड, एंड उसके ऑपोजिट में देखो, लंबा लिस्ट नहीं है, एक ही चीज है। उस सबको काउंटर करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, उसके ऊपर ओवरकम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अगापे लव और गॉड्स लव। ये अगापे लव आप और मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमारे अंदर हम खुद बना नहीं सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते। इट हैज टू कम फ्रॉम गॉड। वो अगापे लव, परमेश्वर के प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा आपके दिलों में परमेश्वर उंडेलता है। रोमन्स 5:5 आप पढ़ के देखना, वहां पर लिखा है परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में उंडेला है। He poured his love through the Holy Spirit into our hearts, and that is the medicine for all these things. इसके बारे में बाद में हम क्लासेस में एक एक करके पढ़ेंगे। टुडे इट्स अ जनरल आइडिया आपको दे रहा हूं। इनमें से कोई भी बात आपके अंदर है तो कुछ नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं। आपको अपने आप को, अरे मैं कितना गलत पापी इंसान हूं, गलत इंसान हूं, नो, अपने आप को खोजना ना। यू से यस, थैंक यू लॉर्ड फॉर रिवीलिंग दिस टू मी, आई वांट टू डिनाई इट, आई वांट टू रिमूव इट, आई सरेंडर माई सेल्फ। और आपके प्रेम से मैं भरना चाहता हूं। और ये प्रेम इतना सुंदर प्रेम है, इट प्रोड्यूसेस called the fruit of the spirit। पवित्र आत्मा के जो फल को आपके अंदर से उत्पन्न करेगा। एंड दैट फ्रूट हैज, बाइबल के अनुसार, जो गलेशियंस के अनुसार 9 गुडनेस, 9 रस है, 9 रस है, पर उससे ज्यादा है। ऑल द गुडनेस कम फ्रॉम व्हाट, वन फ्रूट, और दैट वन रूट, अगापे लव। ये सारे फ्रूट ऑफ द स्पिरिट क्या है? एफेसियंस 5 में लिखा है फ्रूट ऑफ द स्पिरिट कौन कौन सी हैं? लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल। यस, इट्स ओनली वन फ्रूट। 5:22 में देखो, बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट नहीं है, आत्मा का फल, फलों नहीं है। वो एक फल में अलग अलग गुण है। जितने सारे गुण है जो परमेश्वर के अंदर, वो सब आपके अंदर भी प्रोड्यूस हो सकता है थ्रू द लव ऑफ गॉड। अगापे, प्रेम, आनंद, शांति, संयम, करुणा, दया, नो, विश्वास योग्यता, जेंटलनेस, नम्रता, ये सब कुछ, ये सारे गुण, इसके अलावा और भी गुण है, ये दीज आर द मेन। और भी जितना भी गुण है, टू फॉरगिव, द एबिलिटी टू फॉरगिव, क्षमा करने का जो काबिलियत, ये सब गुण है, ये सब कुछ प्रोड्यूस करता है द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, द लव ऑफ गॉड। वो लव ऑफ गॉड अगर आपके अंदर है तो देन यू विल हैव द लव टू लव योर पेरेंट्स, योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हस्बैंड एंड वाइफ एंड फ्रेंड्स। ये सब कुछ आप कर पाएंगे। So I just want to close here। मैं यहाँ पर बंद करना चाहता हूँ आज के जो हमारे क्लास है, टू अंडरस्टैंड कि बैबिलोन का जो स्पिरिट है और परमेश्वर के जो राज्य का जो स्पिरिट है, किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ डार्कनेस। बैबिलोन जो बाबेल से शुरू हुआ था, वो स्पिरिट मसीह विरोधी की आत्मा है। वो स्पिरिट का गुण हम देख सकते हैं। इस संसार में जितने भी पाप, वो सब वहां से शुरू हुआ, उसकी उत्पत्ति, उसका स्रोत वही है।
but God has given us His love. परमेश्वर के अंदर से उसका प्रेम को वो हमें दिया. If you have any questions, please feel free to ask me, because मुझे पता है कि ये Babylon, New Jerusalem, ये सब कुछ थोड़ा सा टफ बात है, बट आई जस्ट एक जनरल आइडिया देना चाहता कि वो वहां से शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है. जब तक परमेश्वर ने समय नियुक्त किया है वो तब तक चलेगा. लेकिन हमें ये आइडिया नहीं होने के कारण फिर हम सोचे क्या, रहे पता नहीं, हम तो कुछ भी मतलब वी डोंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग. इससे आपको पता चलेगा, अगर कहीं भी कुछ काम हो रहा है आपको तुरंत पता चलेगा ये कौन सी इन्फ्लुएंस से हो रहा है, सो दैट यू कैन स्टे अवे. अगर गलत बैबिलोन का इन्फ्लुएंस है, एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट है उसके पीछे, स्टे अवे, उससे आप दूर रहें. एंड बी सबमिसिव टू द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के अधीन रहें, और वो आत्मा आपको अगुवाई करेगा, वो आपको मदद करेगी. परमेश्वर के सामर्थ आपके अंदर आने पाए. नो, वी शुड वॉट एवर वी बिल्ट, जो भी हम बना रहे हैं वो परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार, उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए हमें करना है. May we be united in the Spirit, Holy Spirit, true Spirit of God, and build His kingdom on this earth and bring glory to God. And let it bring what you call the kingdom of God into the lives of many of your friends, your family. आपके परिवार, दोस्तों के कईयों के अंदर इसके द्वारा परमेश्वर का राज्य बनने पाए, बढ़ने पाए. हम मिलकर परमेश्वर की आत्मा में यूनाइट होकर, उसके सबमिसिव होकर हम आगे बढ़े. So thank you for being here. God bless you. Thank you, Bhaiya. Thank you so much. Thank you. God bless. God Take bless you, care. Bhaiya. Take care. We'll see you next See you. week.